हाय एवरीवन, सीक्वल हैकर रैंक सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और हम आज सीक्वल में एक नए इंटरमीडिएट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ बाइनरी ट्री नोड्स। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। सो इस पर्टिकुलर हैकर रैंक क्वेश्चन में वी हैव अ बाइनरी सर्च ट्री। सो जिन्हें पता नहीं है बाइनरी सर्च ट्री क्या है, तो बेसिकली it look like this. Okay, and if you have more doubt, I will post a new video for binary search tree. Okay, we have a binary search tree and we have a table related to that binary search tree, और उस binary search tree से related जितने भी nodes हैं उनका डिटेल दिया हुआ है। Let's suppose एक binary search tree में एक binary search tree has a node, okay, has a root and उस root के नीचे उसके nodes होते हैं। Let's suppose this is left hand side node and I have a right node. Okay, and these nodes can have further two different left node and two further right nodes and so on. Okay, so the overall basic idea of a binary search tree. Okay, and related to this only we have a table. अपने पास एक table है that includes a data for all the nodes. Let's suppose अपने पास जितने भी nodes हैं उस node से related जितना भी data है उसका parent कौन है, उससे related हमारा data दिया हुआ है। Okay, and now the question is that if we have this particular node, let's suppose we have this particular binary search tree. So इस बाइनरी सर्च ट्री में जैसे आप देख सकते हैं we have a node called 5. this is a root node. Okay, so जो भी node जिससे पहला बाइनरी सर्च ट्री स्टार्ट होता है उसको अपन रूट नोड बोलते हैं। फिर उसके नीचे है अपने पास we have a left hand side node and we have a right hand side node. So we have a 2 as a left hand side node और 8 we have as a right hand side node. और उस 2 के नीचे भी वी हैव 2 डिफरेंट नोड्स, दैट इज 1 and 3, एंड उसके नीचे फॉर 8 के नीचे भी वी हैव नोड्स लाइक 6 and 9. नाउ वी हैव टू राइट अ क्वेरी कि इफ अगर मुझे नोड्स का डिटेल दिया हो, लेट्स सपोज अगर मेरे पास नोड्स का डिटेल दिया हो, जैसे लेट्स सपोज वी हैव अ नोड कॉल्ड 1, अगर उसका डिटेल दिया हुआ है कि उसका पेरेंट 2 है एंड देन वी हैव अ नोड कॉल्ड 3, उसका पेरेंट 2 है, सो हमें कुछ ऐसा क्वेरी लिखना है। वी हैव टू राइट अ सीक्वल क्वेरी विच कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन कि कौन सा नोड रूट नोड है, कौन सा नोड इनर नोड है। सो बेसिकली वी आर कॉलिंग दिस एज अ इनर नोड, ओके, एंड दिस एज अ रूट नोड, दिस एज अ इनर नोड, एंड दीज आर टर्म्ड एज अ लीफ नोड। ओके, जो सबसे लास्ट में होता है जिसके कोई चाइल्ड नोड्स नहीं होते हैं, दोज नोड्स आर कॉल्ड लीफ नोड्स. So we need to write a query related to this, where we can find the detail that which of the node is a root node and which of the nodes is a leaf or inner root. So let's get started. To obtain this particular query, we have few conditions. Okay, so here we have three different cases. First we have is for root. Okay, so root looks simple. Root थोड़ा simple लग रहा है ना, क्योंकि हमें बस वो ऐसा नोड सर्च करना है जिसका कोई पेरेंट ना हो। तो ये केस एक केस ये हो सकता है जहां पे हमें रूट निकालना हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम लोग ऐसे नोड्स निकालें, वी फाइंड दोज नोड्स, कोई चाइल्ड नोड ना हो या वो किसी दूसरे का पेरेंट नोड नहीं होना चाहिए। ओके, सो वी कॉल दोज नोड एज अ लीफ नोड। एंड तीसरा वो इनर नोड्स होंगे जिसका पेरेंट नोड भी होगा एंड दे ऑल्सो हैव चाइल्ड नोड्स। ओके, सो ऐसे नोड्स को हम इनर नोड बोलेंगे। सो लेट्स राइट अ क्वेरी फॉर दैट. So मैंने ऑलरेडी BST टेबल क्रिएट किया है एंड क्रिएटेड NNP as a columns. Okay, if you could see this particular table, so here the first column is node and P is parent table. So let's write the query. So let's write a query for that. Okay, so initially now we have a case. So पहला केस हमारे पास ये है कि we want to find the root. So let's write a query for that.
So I am selecting the node, okay, and writing a case statement. When parent of that particular node is null, when p is null, then we are calling that particular node as a root node. So here we have solved one problem case, or and we can close this case end. अपन case को ऐसे end कर सकते हैं, okay, from the BST table, okay. So if I run it, अगर मैं इसे रन करता हूँ, मुझे 5 as a root node मिल रहा है. Now our second case is we want to find the inner node, okay. तो inner node मैं ऐसे हर वो नोड की, वो खुद भी एक नोड हो, किसी पर्टिकुलर नोड का वो चाइल्ड नोड हो, और वो किसी दूसरे नोड्स के पेरेंट नोड हो, वैसे नोड को अपन हम लोग इनर नोड बोलेंगे, ओके. लेट्स राइट अ क्वेरी. सो अपन को अगर चेक करना है, मुझे ये चेक करना होगा वो नोड है, ये तो हमें पता है, ओके, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन नोड कॉलम, मीन्स इट इज अ नोड ऑफ सम अदर पेरेंट नोड. किसी पेरेंट नोड का वो चाइल्ड नोड है, ये तो हमें पता है बिकॉज वो एग्जिस्ट कर रहा है नोड में. नाउ वी वांट टू चेक क्या वो पेरेंट नोड में एग्जिस्ट कर रहा है. अगर वो पेरेंट नोड में एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसका मतलब उसके नीचे भी 2 डिफरेंट नोड्स होंगे, है ना. सो वी एंड वैसे नोड्स को वी आर कॉलिंग इट एज इनर नोड, ओके. सो व्हेन n in, so we are selecting all those records from the parent, okay, pre from bst. अगर ऐसा है, अगर वो पेरेंट नोड में एग्जिस्ट करता है, मींस दिस इज अ इनर नोड बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ नोड. एंड अगर वो पेरेंट नोड में एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स मींस इट इज अ इनर नोड. सो वी आर कॉलिंग इट एज इनर, ओके. एंड उसके अलावा जो भी जितने भी अदर नोड्स होंगे, जो ना ही उसके रूट नोड नल है या पेरेंट नोड नल है, या वो पेरेंट नोड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वैसे नोड्स को हम लोग बोलेंगे लीफ नोड, ओके, लीफ. सो इफ आई रन दिस पर्टिकुलर क्वेरी, you could see that I am getting the result. I'm getting the desired result. So let's check. Let's use this query in the HackerRank and let's check whether it is working or not. Control V, order by n, because in the statement it mentioned you need to order it by n. If I run it, let's see whether it is working. And okay, so one of the sample test case is being passed and it is giving the exact result. Let's submit the code and check whether all the data is correct or not. So it passed all the output and the data is also correct, okay. So this is the correct query for this particular binary tree. Hope you like my videos. Please do subscribe and share my channel. If you really think that I am doing some good work, please help me to grow. Thank you so much.